شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے بھائی بہن اور انٹرنیشنل کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ کل کی بات ہے کہ کچھ دوستوں کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ سر مجھے ایک خاص بات ہے جس پر دھیان دینا ہے۔ میں نے کہا یہ صرف آپ کی اکیلے کی بات ہے یا آپ جتنے کلاس میں بیٹھے ہیں ان کی ہے؟ کہنے لگے ہے تو یہ ہماری سب کی، لیکن آج صرف میری ایک کی یہ خاص پریشانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بات چل پڑی۔ بات ہوتے ہوتے اس حد تک چلی گئی کہ کہنے لگے کہ جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ دعا کرنے کے باوجود، کلام پڑھنے کے باوجود مجھے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب خیال مجھ پر سوار رہتے ہیں۔ بڑے پادریوں سے دعا بھی کروائی ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی، یہاں تک کہ نفسیاتی جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، تو کوئی بات بنی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس آنا تھا، اس سے پوچھنا تھا۔ کہنے لگے ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ بات بڑی توجہ طلب تھی، بڑے دھیان سے سنی جا رہی تھی کہ ہاں یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دیں، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، نا امیدوں کو امید دی، جو بے روزگار تھے ان کو روزگار پہ لگا دیا، جو خالی ہاتھ تھے ان کے جال مچھلیوں سے بھر گئے۔ تو اس بات کا کوئی حل نظر نہیں آتا کہ کیا کریں۔ تو میں نے کہا کہ آپ بائبل کو پڑھیں تو آپ کو ہر بات کا ایک راہ ملے گا، لیکن اس راہ پہ آپ نے خود چلنا ہے۔ بدروحوں سے اور ڈراؤنے خیالوں سے، خوابوں سے بچنا، حادثات سے بچنا، یہ سارا ایک پینل ہے بائبل مقدس میں، اگر کوئی اس پر عمل کر لے۔ جیسے کہ داؤد کہتا ہے، اکثر ہم گاتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں جدو میں سونا تے تیرے خیالاں چ پونا۔ داؤد کہتا ہے جب میں سوتا ہوں تو میں ہر کروٹ پہ اپنے خدا کو یاد رکھتا ہوں، میرا خدا میرے ذہن میں ہوتا ہے، میرے اعصاب پر ہوتا ہے۔ اور جو کوئی جس خیال میں سوتا ہے وہی خیال اس کے سامنے دوزخ بھی بن جاتا ہے، جن بھی بن جاتا ہے، اور خدا کی حضوری کا احساس بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ یوسف جو ماں مریم کا مگیتر تھا، وہ اس خیال میں اتنا زیادہ گم تھا کہ میں کیا کروں، میں مریم کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس کی بھی بدنامی نہ ہو اور میں بھی فقیوں فریسیوں کے سامنے جواب دہ نہ بنوں، میری بھی جواب دہی ختم ہو جائے۔ انہی خیالوں میں وہ گھومتا تھا،
दबा हुआ था, पकड़ा हुआ था, तो खुदा के फरिश्ते ने उसको ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। अंदाजा करें, उसके ख्यालों ने, उसकी फिक्रमंदी ने खुदा को इस बात के लिए अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया, और वो इस कदर उसके बारे में खुदा ने अपने फरिश्ते को हुक्म दे दिया कि वो उसके साथ बात कर रहा है। और जब साउल बादशाह दाऊद के हसद में इस हद तक गुम हो गया कि उसका रूह, उसका ख्याल, उसका मन उसके लिए जिन्न बन गया, और उसका रूह उसको डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, और वो भागा फिरता था कि किस तरह से दाऊद से खलासी हासिल करे। और जिस ख्याल में कोई सोता है नफसियाती तौर पर, वही ख्याल उसके अंदर परवान चढ़ते हैं और फिर शक्ल इख्तियार करते हैं। इसलिए आप ये देखें कि अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर इस हद तक देखते हैं कि सोने के उस अमल तक, जब आपके हाथ से मोबाइल गिर ना जाए, जब आपके हाथ कीबोर्ड पे उल्टे सीधे ना लग जाएं, आपके हरफ ना बदल जाएं, लिखते लिखते लफ्ज ना टूट जाएं, उस वक्त तक आप बंद नहीं करते। तो जिस टॉपिक पे आप चल रहे होते हैं, इंटरनेट पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे या जो कुछ भी, तो वही फिक्रमंदी, वही ख्याल, वही सोच आपके सामने एक मुकम्मल तौर पे जाल बन जाता है, जो सारी रात आपको ग्रिप कर लेता है। अब मैं आपको इससे निकलने का हल बताता हूं। ये प्रैक्टिस है, ये कोई जादू नहीं है, ये टूना नहीं है, ये दुआ नहीं है, ये एक तरीका है कि 15-20 मिनट पहले सोने से, बिस्तर पे जाने से पहले, जब आप ब्रश कर लेते हैं, आप टाइम नोट कर लें 20 मिनट का। आप बिस्तर पे जाने से पहले 20 मिनट या आधा घंटा या 15 मिनट इसको इस तरह से कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है इसको बंद कर दें। टीवी है तो वो बंद कर दें, और मोबाइल है तो वो बंद कर दें, और इंटरनेट है तो वो बंद कर दें, कंप्यूटर है तो बंद कर दें, और फिर ब्रश करें और मुंह धोएं, अच्छी तरह से अपने आप को फ्रेश कर लें। जहाँ बाथ जाना है, टॉयलेट जाना है, जो, और सब कुछ फारग हो जाए, फ्रेश हो जाए। फिर आप ये भी है कि अपना फोन भी बंद कर दें। यानी कि फोन बंद करने का मतलब है कि साइलेंस पे कर दें। यूरोप में क्या होता है कि 10 बजे के बाद आप किसी को फोन नहीं कर सकते। हर शख्स अगर किसी दोस्त को फोन करना चाहता है तो देखता है पहले कि 10 तो नहीं बज गए। अगर 10 बज गए हैं तो फिर वो उसके अंदर हिचकिचाहट, झिझक पैदा हो जाती है कि वो नाराज ना हो जाए, बुरा ना मनाए। यहां तक कि अगर कोई शख्स 10 बजे के बाद बिला वजह फोन करके तंग करता है, बार बार कॉल करता है, बार बार कॉल करता है, तो उस पर पुलिस एक्शन भी ले सकती है। क्योंकि अगर कोई शख्स 12-1 बजे तक बातें करता रहता तो सुबह अपने काम पे क्या कब जाएगा, लेट हो जाएगा, तवज्जो नहीं कर सकेगा, और उसका सेहत पर भी असर होता है कि अगर लेट सोएगा तो लेट जागेगा, जब लेट जागेगा तो फिर
नाश्ता सही नहीं करेगा। जब नाश्ता सही नहीं करेगा तो दोपहर का खाना भी लेट हो जाएगा। जब दोपहर का खाना लेट होगा तो शाम की भी तरतीब खराब हो जाएगी। तो वो शख्स एक तरह से मरीज बन जाता है, उसकी तरतीब खराब हो जाती है। सोने की भी तरतीब खराब, खाने की भी तरतीब खराब, काम की भी तरतीब खराब, और फिर उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, उकताहट पैदा हो जाएगी, और वो फिर दूसरों पर जो भी काम करता है दूसरों पर एहसान करेगा कि मैंने ये किया है, क्योंकि सब कुछ उसका हिल गया। तो इसलिए ये 2023 में अपने आप को मैनेज कर लें, रात से शुरू कर लें। जैसे मैंने कहा कि दांत साफ करें, फ्रेश हो जाएं, पानी पीना पी लें, अपने बेड के करीब एक गिलास पानी का रख लें, और दुआ करनी है दुआ करें, जो आप करते हैं कर लें। उसके बाद कोई एक अच्छी किताब, जो डरावनी किताब नहीं, या कोई और किसी टॉपिक की नहीं, या किसी पजल वाली नहीं, या कोई और आप समझते हैं कि कोई सियासत की, कोई और किसी तरफ की, ऐसी किताबें नहीं, बल्कि आप पॉजिटिव चीज जो खुदा का कलाम है, जिसमें से हर जगह पर हमें खुशी मिलती है, और वो है मत्ती 5वां बाब। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। ये पढ़ना शुरू कर दे, 9 मुबारकबादियां हैं, ये पढ़े। गलतियों 5वें बाब में चले जाएं, वहां पर रूह के फल हैं, 9 हैं, उनको दोहराएं। जो अल्फाज आप दोहराएंगे वो एक तस्वीर बना देंगे आपके दिमाग में, और आप दुआए रबानी दोहराएं, अपने बिस्तर पे लेट जाएं बिल्कुल चित, और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें, बस करवट ना बदलते रहें। जब आप फ्रेश हो जाएंगे तो फिर आप आराम से इजी होके लेट जाएंगे। ढीले डाले कपड़े पहने और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने बिस्तर के जो सिलवट है वो निकाल लें, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बिस्तर को आरामदा बनाएं, और फिर पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू कर दें, अच्छी बातें ज़हन में दोहराएं। अगर किसी के साथ नाराजगी है तो उसको माफ कर दें, अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो उसको माफ कर दें, भले उसी टाइम के लिए करें लेकिन करें। इस तरह से है कि सोने से पहले अपना सब कुछ लॉक कर दें, क्योंकि अगर जिंदगी है तो फिर सुबह होगी, अगर जिंदगी नहीं तो कम से कम आपने अपना मामला तो सारा सीधा कर लिया। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, ना तो सेहत से जिंदगी है और ना पैसे से आराम है, ना अच्छे दोस्तों से आपका प्यार और मोहब्बत और लगन बढ़ती है। यह आपका सारा कुछ अंदर है। अगर आप अंदर इत्मीनान में हैं, मुतमईन हैं, तो सब कुछ ठीक होगा। और यह होगा आपको खुद अपने आप को मैनेज करना, फौजियों की तरह पाबंद नहीं करना कि मुझे ये 10 बजे जागना है तो जागना है, मुझे 6 बजे जागना है तो जागना है। नहीं, आप अपने आप को रिलैक्स रखें कि सोने से पहले मुझे 20 मिनट जो है ये इसलिए है कि सारा कुछ मेरा लॉक होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। डिवाइस, मुंह धोना, ब्रश करना, फ्रेश होना, पीना, पिलाना, जो कुछ भी है सब कुछ ब्रेक, खत्म। उसके बाद बेड के करीब आ जाएं, उसको सिलवट निकाल लें, बिस्तर झाड़ें, साफ करें, अपना तकिया ठीक करें और
पानी का गिलास अपने बेड के करीब रखें, उसके ऊपर ढक्कन रखें और फिर अपने पास अगर बाइबल है या कोई आपने ज़बानी कुछ याद किया है, ज़बूर याद किया है, दुआ रबानी याद किया है, रसूलों का अकीदा याद किया है, 10 अहकाम याद किए हैं, या फिर मुबारकबादियाँ याद की हैं, या रूह के फल याद किए हैं, तो रूह के फल याद करने हैं, ना कि जिस्म के काम। अगर आप जिस्म के काम याद करते रहेंगे, यानी कि हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, तो आप इसी दिमाग, इसी सोच में, इसी सर्कल में पड़ जाएंगे। तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो याद रखें, याद करें, साथ साथ देखें, हाँ आज मैंने उसके साथ मैं नाराज हुआ था, चलो मैं उसको माफ करता हूं, उसके साथ मैंने ये बात की, खुदावंद तू मुझे माफ कर, वो भाई तू भी माफ कर, क्योंकि मसीह ने कहा ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी, जिस पैमाने से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये ऐसा नेटवर्क है, जिसको आप याद करते हो वो भी याद करता है, जिसके आप खिलाफ बोलते हो वो भी खिलाफ बोलता है, जिसके बारे में आपके अंदर कदूरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, वो भी आपके साथ उसी तरह से है। आप अक्सर नहीं कहते कि मैंने तो आज ही आपको याद किया था और आपका फोन आ गया, मैं आपके बारे में सोच ही रहा था तो आप आज मुझे मिल गए। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसकी बड़ी ग्रिप है। तो अगर आप अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं, इत्मीनान में रखना चाहते हैं, तो अपने मामले कम करते जाएं। ये प्रैक्टिस करें, इस साल में आप प्रैक्टिस करें। आप देखें 10-15 दिनों में ही आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, आपके माथे की स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी, आपके होंठों का रंग बदल जाएगा, आपके बोलने का स्टाइल बदल जाएगा, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके पट्ठों की जो का तनाव जो है वो खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये अंदर हैं, दिल का मामला है, और दिल और दिमाग ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। दिल बज़ाहिर तो एक पंप का काम करता है, लेकिन इस पंप का फंक्शन खुदा के साथ भी है और इंसान के साथ भी है और आपके हर अमल के साथ है। तो इसको कंट्रोल करें, और जब आपकी हार्ट बीट ठीक हो जाएगी, आपके अंदर का सारा सिस्टम इतना पुरसकून हो जाएगा कि आप देखेंगे कि इतनी गहरी नींद आती है, कोई डरावने ख्वाब नहीं आते। जब आप सोते हुए ऐसी ऐसी चीजें, फैंटेसी, हॉरर मूवी, बदरूहों की बातें, जिन भूत, ऐसी बातें करेंगे तो रात को तो फिर डर लगेगा। और फिर देखते हैं बच्चे कहते हैं अम्मी मैंने आपके साथ सोना है, बच्चे अब्बू मैंने आपके साथ सोना है, बहन मुझे डर लग रहा है मुझे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप खुद पूरे मामले को पैनल पे रखते हैं जिसमें फंस जाते हैं। और दाऊद की तरह यही दोहराएं कि जदों मैं सोना तेरे ख्यालां च पौना, खुदावंद के ख्यालों में रहें, उसके कलाम के ख्यालों में रहें और अपने मामलात को जीरो करके सोएं। जब दिन चढ़ेगा फिर देखा जाएगा, नई रोशनी होगी फिर देखा जाएगा। ये प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जिंदगी इत्मीनान से भर जाएगी। आपका स्वभाव, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आंखों की चमक बदल जाएगी, कानों की जो सुनाई है वो बदल जाएगी, जो बातें करने का तरीका वो बदल जाएगा, क्योंकि अपने आप को आपने मैनेज कर लिया है। आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, फैमिली के जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। अगर बीवी है के अंदर कोई गड़बड़ है वो अपने आप को ठीक करे, मर्द के अंदर है वो करे, इस तरह हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फैमिली सब प्रैक्टिस शुरू कर दे।
دیکھیں کہ کیسا پیارا خوبصورت یہ سال آپ کے لیے خوشیوں بھرا ہو۔